Okay, let's start. So electronic structures we are going to start. So according to electronic structure of alcohol, phenol and phenolic hydroxyl group, uh, in this is the structures of methanol CH3OH, and this is the structures of phenol C6H5OH, and it is ether methoxymethane CH3O CH3 methoxymethane, it is ether. In this structure we can see clearly uh, in methanol, this is methanol. In methanol, carbon, the hybridization of carbon is sp3. The hybridization of carbon is sp3. Carbon is sp3 hybridized atom in methanol, and carbon is, and this oxygen is sp3 hybridized, and this carbon is also sp3 hybridized carbon atom. How can we find the hybridization? Total number of lone pair plus bond pair. Total number of lone pair plus bond pair. For in the case of oxygen, total number of lone pair plus bond pair. तो ऑक्सीजन इसमें कितने लोन पेयर, ऑक्सीजन के बाद में कितने लोन पेयर है? ऑक्सीजन हैज 2 लोन पेयर, 1 and 2, and the bond pair of oxygen is also 2, 1 and 2. तो वो दो लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास में, और दो बॉन्ड पेयर है, दो लोन पेयर है। तो टोटल काउंट कितना हो गया? 4। तो 4 के लिए जो है हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा? sp3। ओके, similarly here also oxygen is sp3 hybridized, here also oxygen is sp3 hybridized, but the bond angle in case of methanol, it is 108.9 degrees. This is the bond angle. What is the bond angle? Bond angle is the angle between two bonds. Bond angle is the angle between two bonds, and it is 108.9 डिग्री, 108.9 डिग्री। तो एक्चुअल में कितना होना चाहिए? जब sp3 हाइब्रिडेशन होता है तो बच्चों उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो टेट्राहेड्रल होती है, और टेट्राहेड्रल के अंदर जो बॉन्ड एंगल होना चाहिए वो होना चाहिए 109 डिग्री, 109 डिग्री 28 मिनट का, 109 डिग्री 28 मिनट का बॉन्ड एंगल होना चाहिए। लेकिन जो बॉन्ड एंगल है इन केस ऑफ मेथेनॉल 109 डिग्री 28 मिनट से कम होकर कितना हो गया है? 108.9 डिग्री। इन केस ऑफ phenol, the bond angle is 109 degree. In phenol, the bond angle is slightly higher than that of methanol. But in case of ether, the bond angle is much more higher is the tetrahedral structure. We know in tetrahedral structure, the bond angle must be 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट का बॉन्ड एंगल होता है किसमें? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में। लेकिन इसका जो बॉन्ड एंगल है वो बढ़कर कितना हो गया बच्चों? 111.7 डिग्री, 111.7 डिग्री। तो बॉन्ड एंगल इन ईथर इज 111.7 डिग्री। इसका क्या रीजन है बच्चों? इसमें बॉन्ड एंगल सबसे कम है, देन फिनोल में बॉन्ड एंगल ज्यादा है, और सबसे ज्यादा जो बॉन्ड एंगल है वो किसमें है? ईथर में। तो इसका हम रीजन समझेंगे। तो मेथेनॉल में क्या है बच्चों? ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, और इस साइड में एक ग्रुप जुड़ा हुआ है CH3। तो CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है। साथ में हमें ये भी पता है अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी, वेस्पर थ्योरी हमने पढ़ा है। तो वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग हम क्या जानते हैं? अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी वी नो द रिपल्सन बिटवीन लोन पेयर, the repulsion between lone pair is higher than that of repulsion between lone pair bond pair, repulsion between lone pair and bond pair, and the repulsion between bond pair and bond pair is least. The repulsion between bond pair and bond pair is least. This is the repulsion between bond pair and bond pair. What is lone pair and what are the bond pair? These are the lone pair of oxygen. These are the lone pair of oxygen. In lone pair, there will be maximum repulsion. There will be maximum repulsion.
these are the lone pair and this is bond, and to form one covalent bond we know it required two electrons. So it is the lone pair of electron, again here lone pair of electron of bond, बॉन्ड पेयर के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, तो इसका जो रिपल्सन है वो लोन पेयर रिपल्सन के कंपैरिजन में क्या होगा, कम होगा, ये रिपल्सन कम होगा, ये रिपल्सन कम होगा, और जो लोन पेयर के अंदर जो रिपल्सन होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। अब ये क्या है, ये बॉन्ड पेयर है, ये भी बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर को एक बॉन्ड को बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायरमेंट होती है, टू इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है, दो इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, एक बॉन्ड को बनाने में दो इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में जो रिपल्सन होगा वो सबसे लीस्ट होगा, तो ये इसमें रिपल्सन कम है, तो क्या होगा यहाँ पे, ये रोल लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में जो अट्रैक्शन है वो मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम होने की वजह से ये लोन पेयर क्या करेंगे, ये लोन पेयर क्या करेंगे, इस बॉन्ड पेयर को क्या करेंगे, इस साइड में क्या करेंगे, पुश करेंगे, नीचे की साइड में इसको पुश करने की कोशिश करेंगे, तो नीचे की साइड में इसको पुश करेंगे, तो ये जो बॉन्ड एंगल है वो 109 डिग्री 28 मिनट से घटकर कितना हो जाएगा, 108.9 डिग्री का रह जाएगा। सिमिलरली इन केस ऑफ बेंजीन, तो सॉरी इन केस ऑफ फिनॉल, तो फिनॉल के केस में जो हम बॉन्ड एंगल देखते हैं वो 109 डिग्री का होता है, ना कि 108.9 डिग्री। इसका क्या रीजन है, वाई इन फिनॉल द बॉन्ड एंगल इज मच स्लाइटली हायर देन दैट ऑफ मेथेनॉल। इसका रीजन ये है कि ऑक्सीजन के एक तरफ फिनोलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है और दूसरी तरफ हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन की जो साइज है, हाइड्रोजन एटम की साइज बहुत छोटी है, लेकिन जो फिनोलिक ग्रुप है, तो फिनोलिक ग्रुप है इसकी, ये क्या है, थोड़ा सा बल्कि ग्रुप है, और बल्कि ग्रुप होने की वजह से लोन पेयर और लोन पेयर का जो रिपल्सन है, और इस लोन पेयर और इस बॉन्ड पेयर का जो रिपल्सन है वो इतना ज्यादा नहीं होगा, इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा जितना इफेक्टिव मिथेनॉल के केस में होता है। तो ये बल्कि ग्रुप होने की वजह से इसमें थोड़ा सा रिपल्सन कम होता है, तो इस वजह से बॉन्ड एंगल थोड़ा सा बढ़ जाता है, 0.1 डिग्री से बढ़ता है, बहुत ज्यादा भी नहीं बढ़ता, 0.1 डिग्री से बढ़ता है। बट इन केस ऑफ ईथर, इन ईथर द bond angle is 111.7 degree. In ether the bond angle is 111.7 degree. सबसे ज्यादा जो बॉन्ड एंगल है वो ईथर में है। रीजन क्या है, ये है लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर, दिस इज द रिपल्सन बिटवीन बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर। तो बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के अंदर जो रिपल्सन है बच्चों, यहाँ पे इन केस ऑफ ईथर इट इज मैक्सिमम एज कंपेयर टू रिपल्सन बिटवीन लोन पेयर एंड लोन पेयर। तो ये जो रिपल्सन है बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर का जो रिपल्सन है इन केस ऑफ ईथर इज मच मोर ग्रेटर देन दैट ऑफ द रिपल्सन बिटवीन लोन पेयर एंड लोन पेयर ऑफ ईथर, लोन पेयर एंड लोन पेयर ऑफ ईथर। लोन पेयर और लोन पेयर जो ईथर के अंदर जो लोन पेयर मौजूद है उसके कंपैरिजन में इसमें बॉन्ड पेयर का जो रिपल्सन है वो क्या होगा बच्चों, ज्यादा होगा, ज्यादा होने की वजह से ये जो बॉन्ड है वो स्लाइटली बढ़ जाएगा, किससे, 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल होना चाहिए, लेकिन एंगल बढ़कर कितना हो गया, 111.7 डिग्री का हो गया। रीजन क्या है, ऑक्सीजन के दोनों तरफ में बल्कि ग्रुप जुड़ा हुआ है, लेफ्ट में भी और राइट में भी, दोनों साइड में क्या जुड़ा हुआ है, CH3 जुड़ा हुआ है, तो बल्कि ग्रुप है, तो बल्कि ग्रुप है तो क्या करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और रिपेल करने से ये जो बॉन्ड एंगल है, ये वाला जो एंगल है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बाकी सब में देखो, मेथेनॉल में एक साइड में CH3 है, लेकिन दूसरी साइड में बहुत ही छोटा ग्रुप है, बहुत ही छोटा एटम जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो इतना बहुत कम रिपल्सन होता है, रिपल्सन नहीं के बराबर है। तो इसमें लोन पेयर में जो रिपल्सन है वो मैक्सिमम होता है, और बॉन्ड पेयर में रिपल्सन सबसे कम होता है। इन केस ऑफ फिनॉल, फिनॉल के अंदर क्या है, एक साइड में बल्कि ग्रुप जुड़ा हुआ है, फिनालिक फिनोलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, दूसरी साइड में क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो हाइड्रोजन बहुत छोटा है एटम है, तो इतना ज्यादा ज्यादा रिपल्सन नहीं होता जितना रिपल्सन हमें मेथेनॉल के केस में देखने को मिलता है, सॉरी एस्टर ये ईथर के केस में हमें देखने को मिलता है। तो ये हमने पढ़ लिया, दीज वर द इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ द एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। अब हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, ये भी हम देख लेते हैं, कुछ इसमें दे रखा है, देखो बच्चों, कार्बन और ऑक्सीजन का ये बॉन्ड लेंथ इन इन मेथेनॉल,
द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इज 142 पिकोमीटर. इन मिथेनॉल the carbon oxygen bond length is 142 picometer, while in case of phenol the carbon oxygen, this is the carbon, यहाँ पे एक कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच की जो ये बॉन्ड लेंथ है बच्चों, ये बॉन्ड लेंथ, लेंथ ऑफ द बॉन्ड इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ. The length of the bond is 136 picometer, while in case of ether the carbon oxygen bond length is only 141 picometer. तो एल्कोहल और ईथर के अंदर लगभग सिमिलर है. बॉन्ड एंगल इज ऑलमोस्ट सिमिलर इन केस ऑफ एल्कोहल एंड ईथर, बट इन फिनॉल द बॉन्ड लेंथ इज लेसर एज कंपेयर टू एल्कोहल. व्हाट इज द रीजन? इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन है ड्यू टू पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर ऑफ ऑक्सीजन ऑफ फिनॉल. तो फिनॉल के अंदर क्या होता है बच्चों, ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास में ये जो सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, इसमें क्या होता है, पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर होते हैं. पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर का रीजन क्या है? इसका रीजन है रेजोनेंस. क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये लोन पेयर के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करते हैं, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं. तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियली डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा. और हमें पता है बॉन्ड एंगल, अगर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है तो उसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होता है, अगर डबल कोवलेंट बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ कम होता है, और अगर ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ बहुत कम होगी. तो सिंगल बॉन्ड के अंदर जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है 2, और इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है. तो जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ कम होती है. तो बॉन्ड ऑर्डर बीपी मीन्स बॉन्ड ऑर्डर, सॉरी बीओ मीन्स बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ. जितनी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी बॉन्ड ऑर्डर उतना कम हो जाएगा बॉन्ड लेंथ. ये एक रिलेशन आप ध्यान रखना. मतलब सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है तो उसका बॉन्ड लेंथ 1 है, बॉन्ड लेंथ कम है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो गई तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. इस केस में देखो बॉन्ड लेंथ बढ़ी है, इसका मतलब बीएल मतलब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ा है, तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ा है तो ये क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ा है. इस केस में देखो इसमें बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, 2 हो गया, या बॉन्ड ऑर्डर 2 हो गया, तो बॉन्ड ऑर्डर 2 होने से क्या हो गया, बॉन्ड लेंथ कम हो जाता है. इसका मतलब सिंगल बॉन्ड की सीधी बात ये हमें ध्यान रखनी है, सिंगल बॉन्ड में बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, डबल बॉन्ड में बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड के कंपैरिजन में कम होगी, और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी. ओके, तो ये हमें पढ़ लिया सारा. इसमें भी ऑक्सीजन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज है, इसमें भी ऑक्सीजन sp3 हाइब्रिडाइज है, इसमें भी ऑक्सीजन sp3 हाइब्रिडाइज है. ये जो बॉन्ड है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये sp3s हाइब्रिडाइजेशन है. इसमें इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन दिख रहा है बच्चों ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में, इन केस ऑफ मेथेनॉल इट इज sp3s हाइब्रिडाइजेशन. ये जो बॉन्ड है वो sp3s बॉन्ड है. sp3 किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए, और s किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए, s है. और ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है, इसका हाइब्रिडाइजेशन दिया हुआ है sp3 sp3. sp3 इस कार्बन के लिए, इस ऑक्सीजन के लिए sp3, और ये सिंगल बॉन्ड इसको रिप्रेजेंट कर रहा है. ओके, नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट मेथड of preparation of alcohols. How can we prepare methane alcohols in laboratory and by commercially? तो commercially अल्कोहल को हम कैसे बना सकते हैं, और लेबोरेटरी मेथड में अल्कोहल को हम कैसे बना सकते हैं. तो इसमें कुछ मेथड्स दे रखे हैं, जो इम्पोर्टेंट मेथड्स है वो यहाँ पे दे रखे हैं. तो सबसे पहले दिया हुआ है फ्रॉम हेलो एल्केन और फ्रॉम एल्काइल हैलाइड. एल्काइल हैलाइड से हम अल्कोहल को कैसे बनाएं, हाउ टू फॉर्म alcohols from alkyl halide. These are the alkyl halide. यहाँ पे R क्या है, alkyl group. R is a alkyl group and X means halogen group और halide. और IUPAC नोमेनक्लेचर में इसको क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन बोलते हैं. तो इसकी रिएक्शन हमें किससे करवानी है, एक्वस KOH में, एक्वस KOH से हम इसकी रिएक्शन करवानी है. तो ये जो रिएक्शन है बच्चा,
ये कौन सी रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन को फॉलो करेगा, ये एसएन रिएक्शन को फॉलो करेगा। एसएन रिएक्शन, एसएन रिएक्शन हमें पता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एसएन आर द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी टाइप की रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी दो टाइप की है हमें पता है, हमने फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़ के आए हैं। एसएन रिएक्शंस आर ऑफ टू टाइप। कौन कौन सी है रिएक्शन बच्चों, SN2 एंड SN1, SN1 एंड SN2 रिएक्शन। तो ये भी हमें पता होगा बच्चों, SN2 रिएक्शन कब होती है, SN1 रिएक्शन कब होती है, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। ये जो केमिकल रिएक्शन है बच्चों हेलो एल्केन की KOH के साथ में, ये कौन सी टाइप की रिएक्शन है, ये SN2 रिएक्शन है। SN2 टाइप की रिएक्शन, इट इज द SN2 रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मोलिकुलर रिएक्शन। अब इसको बाई मोलिकुलर रिएक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल अटैक हो रहा है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या है बच्चों, OH है। ये OH है, ये क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है, और ये क्या है, ये लिविंग ग्रुप है, ये लिविंग ग्रुप है। दिस इज X इज लिविंग ग्रुप, और ये OH ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जब एल्काइल हैलाइड के ऊपर रिएक्ट करता है, कौन सा एल्काइल हैलाइड बच्चों, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। तो ये 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, अगर 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, यहाँ पे 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है और इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, तो जो रिएक्शन है वो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाती है, उसमें कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनता है, कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनेगा और एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाएगी। तो इस रिएक्शन को हम SN2 रिएक्शन क्यों कहते हैं, SN2 रिएक्शन कहने का रीजन ये है कि यहाँ पे जो ये रिएक्शन चल रही है, इस रिएक्शन की जो वेलोसिटी है या इस रिएक्शन को डिटरमाइन करने वाले जो पॉइंट है वो कौन कौन से हैं, किस किस के ऊपर डिपेंड करेगी ये रिएक्शन। एक तो इसके ऊपर डिपेंड करेगी RX के ऊपर, RX के ऊपर डिपेंड करेगी। RX का मतलब है सबस्ट्रेट। यहाँ पे सबस्ट्रेट क्या है बच्चों, हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन यहाँ पे सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसके ऊपर अटैकिंग ग्रुप अटैक करता है। सबस्ट्रेट के ऊपर हमेशा अटैकिंग ग्रुप अटैक करता है, जिसके ऊपर अटैक होता है उसको हम बोलते हैं सबस्ट्रेट। और यहाँ पे जो KOH है वो किसकी तरह काम करेगा, रिएजेंट की तरह काम करेगा। तो KOH के अंदर न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा बच्चों, OH क्या है यहाँ पे, न्यूक्लियोफाइल है, एंड OH इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। और जब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है और एल्काइल हैलाइड लेते हैं हम, एल्काइल हैलाइड में भी कौन सा एल्काइल है, एल्काइल हैलाइड ले बच्चों हम, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, RX इज ए प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। अगर ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर रिएक्ट करेगा और रिएक्शन एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाएगी। और SN2 रिएक्शन इसलिए बोलते हैं, बाई मोलिकुलर इसलिए बोलते हैं कि इस रिएक्शन की जो वेलोसिटी है किसके ऊपर डिपेंड करेगी, या इस रिएक्शन की रेट किसके ऊपर डिपेंड करेगी, रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ reactant as substrate as well as reactant. The rate of reaction is depend on the concentration of substrate as well as न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे क्या है बच्चों, रिएजेंट है, तो दोनों के ऊपर इसकी कंसंट्रेशन डिपेंड करती है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, SN2 रिएक्शन। तो SN2 रिएक्शन हो रही है यहाँ पे, तो क्या होगा, X जो है ये लिविंग ग्रुप है, ये रिमूव हो जाएगा और K के साथ में रिएक्ट करके क्या बना लेगा, KH बना लेगा और रिमूव हो जाएगा बाहर। तो, जैसे ब्रोमो, ब्रोमो एथेन रिएक्ट विद KOH, एक पास SN2 रिएक्शन चल रही है, एथेनॉल बनेगा, इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इसी टाइप से बेंजाइल क्लोराइड अगर KOH से रिएक्ट करती है तो क्या बनेगा बच्चों, बेंजाइल एल्कोहल बनेगा, बेंजाइल एल्कोहल बनेगा बच्चों। यहाँ पे हमने क्या लिया है बच्चों, देखो बेंजाइल क्लोराइड लिया है, यहाँ पे बेंजाइल क्लोराइड, ये ध्यान देना है, यहाँ पे बेंजाइल क्लोराइड लिया हमने।